Guys, welcome to Soumya Sharma Captures. So today we are going to record testimonials of all the different friends we have. So actually देखा जाए तो हमारे 2 साल इस यूनिवर्सिटी में आके बीते जहाँ पे हम न्यूमरस फील्ड इंटर्नशिप्स पे गए एंड नाउ वी हैव फाइनली थॉट दैट हम लोग इस एकेडमिक सेशन को कंक्लूड करेंगे विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स टेस्टिमोनियल्स और व्हेन आई लाइक अगर वीडियो में रहा तो शुरुआत नहीं करती हूँ. वन ऑफ माई मेन थिंग इज़ दैट ये यूनिवर्सिटी में जब मैं आई थी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था कि पता नहीं मैं कहाँ खड़ी हूँ. बट आज जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो आई स्टैंड विद अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी. आई एम सो हैप्पी दैट आई केम हियर. माई डिसीजन प्रूव्ड मी वेरी राइट. आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डाइवर्स कल्चर एंड यूनिवर्सिटी. इसके यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी बात की जाए उतने कम है. 2 साल मुझे यहाँ बीत गए बट इट जस्ट फील्स लाइक टुमारो एंड आई विश आई कुड स्टे हियर फॉर लॉन्ग. बट 2 साल का पीरियड बहुत जल्दी बीत गया एंड द एक्सपीरियंस वॉज लाइक 10 on 10. मतलब यहाँ पे आने के बाद लगा कि हाँ ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए एंड द फन रिमेन्स. लेट्स सी क्या होता है आगे. बट इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस. इट वाज सच फन एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. थैंक यू. It was a really good experience, along with the stress of assignments, presentations, and also having a lot of fun with friends, creating such memories which will go along with our life. And right now we are running sort of time because of the academic end of the day, which is 10th May. So yeah, it was a great experience. I never thought of for a such kind of environment, supporting staff, faculties, and diaspora coming from different parts of the world from India. So yeah, I feel very great to be here. Thank you. As we all know very well, we are all experienced last 3 semesters. The same kind of workload that it comes at the end of the semester. Like all the subjects, all the courses have their final assignments at the last moment, right? Even though they give like a bit more earlier, we extend it till the last date. Because we have the habit of doing it to the last moment. So I think that is also a problem that leads us a lot of tension. Yes. So even though like I'm spending till late nights, like every day, like 12, 1, 2 as well. But the works are like going to be completed, but still I need quality. For that quality purpose, we don't satisfy. For that we need to spend even more time. So that gives us the kind of pressure on us. Yes. So how do you feel it's the last week here? It's like mixed feelings. Actually, I'm excited to go back. That the course has been completed, and at the same time, I'm worried that I should give my best in the assignments, and I'm gonna miss my best faculty, and I'm gonna miss this beautiful university, which gave me everything. Yes, yeah, it's like mixed feeling. I cannot say in one sentence. Think or reflect from my this 2 years journey. So I would say a lot of things has changed, and the most important part is about my perspective towards education and teaching. So whatever the notion we have before coming to this place is that there's a lot of challenge with government schools, this that. But when you actually understand and when you actually see through when you actually see through different perspective and different lenses, you get to understand and how you can contribute towards that, how you can make a difference in the education system. So this is something which I have been able to learn, and as a teacher I will be able to contribute. Apart from all this, I think this place has a good inclusive nature, and you will feel a vibrant space here. So that's all from my side. मी जिमप्रेमजी युनिव्हर्सिटीमध्ये MA एज्युकेशन या कोर्समध्ये आहे आणि या 2 वर्षाच्या प्रोग्राममध्ये मी बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. जसं की त्याच्या अगोदर जे माझं ग्रॅज्युएशन झालेलं होतं ते BSc मध्ये झालेलं होतं. त्या BSc मध्ये जो एक्सपोजर आहे, फील्ड प्रॅक्टिस असेल किंवा दुसऱ्या गोष्टी, त्याचा फार कमी मिळालेला होता. पण या युनिव्हर्सिटीमध्ये आल्यानंतर ज्या काही नव्यानं गोष्टी शिकायला मिळाल्या, बघायला मिळाल्या, त्या 2 वर्षामध्ये प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये जो फील्डवरती जाऊन जो आम्ही एक्सपिरियन्स घेतला, त्या राज्याच्या जी शिक्षण व्यवस्था आहे, त्या शिक्षण व्यवस्थेतील काही प्रश्न असतील, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शिक्षकांचे प्रश्न, या सर्व प्रश्नांवरती एक
चर्चा किंवा त्याचं जे डॉक्युमेंटेशन आहे ते करण्याची या ठिकाणी संधी मिळाली. तर युनिव्हर्सिटीचा कॅम्पस फार सुंदर आहे. त्याचबरोबर राहण्याची बाकीच्या लायब्ररी फॅसिलिटी ह्या सर्व गोष्टी फार सुंदर आहेत. आणि 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स हा एकदम अविस्मरणीय असा राहील. धन्यवाद. My name is Uttam Kumar. I am a student of MA Education second year. 2 सालों के बारे में बात की जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रहीं. हमने फ्रेंड्स बनाए, मेमोरीज क्रिएट किए और यहाँ जो हमें सीखने को मिला, क्योंकि मेरा मैथ स्पेशलाइजेशन है तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जो कैंपस में मैंने सीखा, ग्राउंड पे जाके सीखा, क्योंकि हमें 3 बार फील्ड पे जाना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को समझने का मौका मिलता है. यहाँ जो क्लासरूम में होता है पेडागोजी, वो हम ग्राउंड पे कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ये हमें देखने को मिलता है. और अब 2 दिन रह गए हैं कैंपस में तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 साल क्यों, कल ही तो आए थे और आज हम चले जाएंगे. धन्यवाद. एकदम बढ़िया यार. आई मीन मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं खुद ही इस यूनिवर्सिटी में आऊँ और पढ़ूँ. पहले तो मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि ये मास्टर दोबारा करूँ या ना करूँ, बट इट्स सो इंजॉयबल फॉर मी. अभी भी समझ रही काफ़ी इमोशनल हूँ जब छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि 2 साल एक ही मतलब हॉस्टल या यूनिवर्सिटी के जो सेटअप है यूनिवर्सिटी का रहने का उसमें रहना, और 24 में से लगभग 17-18 घंटे तो एक दूसरे को कभी भी देखते ही है. तो अभी जाने का तो वक्त है, हर चीज़ में थोड़ा मूव ऑन करना पड़ता है. तो थोड़ा इमोशनल हूँ बट रियली फील की इस सारी चीज़ों का मैं पार्ट रहा हूँ. हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता. वैसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ मैं कभी उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर गई नहीं थी. एपीयू ने मुझे वो एक्सपोजर दिया कि मैं बैंगलोर तक आ सकी, बैंगलोर के प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकी, सीख सकी कोर्सेज़ के बारे में जो शायद मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था. और फील्ड प्रैक्टिस रही जिसमें यानी मुझे मध्य प्रदेश फर्स्ट टाइम जाने को मौका मिला, उसके बाद में मुझे बिहार जाने का मौका मिला, उसके बाद में मुझे राजस्थान जाने का मौका मिला. तो ये सभी एक्सपीरियंस बहुत अलग थे. हमारे कल्चर्स अलग है, हम अलग है, इतने सारे दोस्त अलग अलग स्टेट से, अलग अलग भाषाएँ, फिर भी दोस्ती, यहाँ का वातावरण, ठंडा ठंडा हवा, और प्लेग्राउंड रहे, म्यूज़िक रूम रहे, केजीए हॉस्टल रहे या यूएच रहे, सब कुछ बहुत अमेजिंग जर्नी रही है. स्पेसिफिकली प्रोफेसर के बारे में भी बताया जाए तो प्रोफेसर भी मदद करने वाले थे. कम से कम यहाँ पे ये तो कल्चर है कि यहाँ पे लोग जाते आते आपको हाय करते हैं, आप एक मुस्कान लाते हैं, तो वो दिल को सुकून देने वाला रहता है. आप बहुत लोगों से बात ना करें पर फिर भी कोई दिखता है तो अच्छा लगता है. अभी लास्ट डेज चल रहे हमारे जाने के, थोड़ा लग रहा है कि इस माहौल को मैं देख नहीं पाऊँगी, अपने दोस्तों को देख नहीं पाऊँगी फिर से, और बहुत मिस करूँगी इस हवा को, हॉस्टल को, लाइब्रेरी को, बिल्डिंग्स को अलग अलग. तो इस जो एक्सपोजर जो इस यूनिवर्सिटी ने दिया है शायद मैं कभी नहीं ले पाऊँगी, पर मैं खुश हूँ कि इस यूनिवर्सिटी ने मुझे एजुकेशन के साथ साथ मुझे जॉब भी दी है फन ओकेशन में आने के लिए. थैंक यू. Hello. So my journey in APU has not been alone, and like it's not only my journey, but it has been a journey learning together. It's not only in the classroom, but it's on the fields, on the practicums. When you go together with your friends, you are learning from their experience also. So it gives a very enriching experience. Not in the terms of learning, but it's also in the terms of friendship and making a good lifelong bonding with the people. So I wanted to share something about my 2 years journey in APU. So it was a great decision of becoming a part of this culture, because when I came here it was too diverse. For me it was something very new. I have been in a place where it was very regionally constrained, but over here I met a lot of people. And just keeping aside these cultures and everything else, for me the education that I've got over here, the theoretical knowledge that I've got here is something that I wasn't expecting that much. I came with a view that I wanted something to learn about what do we
need to study about social field? Is there any kind of study as well? Because everything can be practical. But then I realized because of some courses like MSRF, SRR, and also SDCS and many other courses, I realized that theory is very important so that we can like at least apply it in on the field. So for me, like, yes, it was a very amazing journey, and I believe I will tell a lot of people, my friends, to join here and gain at least an experience to be in this culture. Thank you so much. माझं नाव प्रकाश वानखेडे, मी मुंबईहून आलो. मी 2022 आणि ते 24च्या बॅचला APUमध्ये शिकत आहे आणि आता पास आउट होत आहे. APU अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी ही एकमेव अशी युनिव्हर्सिटी आहे जिथे वर्गीय विद्यार्थी आहेत जे आर्थिकदृष्ट्या थोडेसे विकसित नाही आहेत. त्यांच्यासाठी ही खूप चांगली एक संधी आहे की अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी आपल्याला स्कॉलरशिप देते. त्या स्कॉलरशिपच्या बेसवरती आपण इथे येऊन शिक्षण घेऊ शकतो आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून नाही तर पूर्ण भारताच्या कानाकोपऱ्यातून अक्षरशः अरुणाचल प्रदेशच्या शेवटच्या गावापासून तर दक्षिण भारतामध्ये सुद्धा प्रत्येक गावातून सगळे विद्यार्थी मुलं मुली इथे शिकत आहेत आणि ही संधी अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीने आपल्याला दिली आहे. तर मला वाटतं प्रत्येक विद्यार्थ्याने जे कोणी उच्च शिक्षणासाठी विचार करत आहेत महाराष्ट्राच्या बाहेर, त्यासाठी APU ही खूप चांगला एक बेस किंवा एक फाउंडेशन म्हणून तयार करू शकतो. यानंतर आपल्याला एक चांगली एक जागा मिळते की आपण पुढील उच्च शिक्षणासाठी बाहेरगावी जाऊ शकतो. आपण पाहतो की आपले बरेचसे मित्र बाहेरगावी जाऊन शिकत आहेत, तर त्यांनाही चांगले चांगले स्कॉलरशिप वगैरे मिळतात. त्यामुळे APUमध्ये आल्यानंतर मलाही बऱ्याचशा काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. खास करून जो थेरॉटिकल पार्ट असतो ज्याला आपण म्हणतो, तो मी शिकत होतो माझ्या ग्रॅज्युएशनमध्ये सुद्धा. पण APUमध्ये आल्यानंतर खास करून मला फील्डवर्क करण्याचा अनुभव मिळाला. मला कम्युनिटीमध्ये जाऊन काम करण्याचा संधी मिळाली. खास करून मी माझी जी इंटर्नशिप आहे ती मी नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कम्युनिटीसोबत राहून मी त्याच्यासोबत काम केलं आणि मला बरंचसं काही शिकायला मिळालं आणि मी यापुढेही शिकत राहण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की APUमध्ये या. APUमध्ये बरंचसं काही शिकण्यासारखं आहे आणि पुढील वाटचालीसाठी सगळ्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद. एक्चुअली यहाँ आने से पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी सोशल सेक्टर में. मैं लाइवलीहुड सेक्टर में काम करता था, तो आई थॉट कि मेरे पास काफ़ी नॉलेज है, मैं लाइवलीहुड सेक्टर में काम कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड काम कर रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. बट आफ्टर दैट मैं APU के एलुमनाई से मिला, लोगों से मिला काफ़ी, तो उन्होंने बताया कि हाँ तेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कहीं ठीक है बट समहाउ तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है. तो उन्होंने मुझे बताया APU का प्रोसेस. और सबसे अच्छी बात कि APU जो है वो वर्क एक्सपीरियंस लोगों के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी देता है. लाइक अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 3 ईयर्स है तो आपको स्कॉलरशिप में भी लाइक 50% की स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी कराता है APU. तो वो चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी कि मैं जॉब छोड़ के भी यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ. देन मैंने अपने जॉब को छोड़ के फिर यहाँ जब ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला. थ्योरेटिकल नॉलेज में मेरे जो सब्जेक्ट्स थे THOD हो गया या अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो मुझे उन चीज़ों ने बताया कि NGO वर्क कैसे करती है, क्या फ्लो होता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. और अगर मुझे देखा जाए तो मुझे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइडेड था, तो मुझे फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की क्योंकि मैं एक जॉब छोड़ के आया था, अपना एक सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के आया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. और काफ़ी डाइवर्स तरह के लोग मिले, उनसे खुला मिला, उनको जाना. और मेंटर्स एंड जो भी मैंने फील्ड एक्सपीरियंस किया, इमर्शन किया, इंटर्नशिप किया, वो भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैं अलग अलग डाइवर्स जगह पे गया, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तो वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो एजुकेशन बैकग्राउंड में हो या वाटरशेड प्रोजेक्ट में हो या लाइवलीहुड में हो. तो काफ़ी अच्छा था. मेरा जो 2 साल की जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे. थैंक यू. If you like the video, kindly like, share and subscribe to my channel.